ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਥ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀਟਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀਕੇ ਮੈਥ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਨਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SSSB ਐਗਜ਼ਾਮ 2022-23 ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਅਮੰਗ 667, 559 ਤੇ 921 ਪ੍ਰਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਵੇ, 5 ਹੋਵੇ, 7 ਹੋਵੇ, 11 ਹੋਵੇ, 13 ਹੋਵੇ, 17 ਹੋਵੇ, 19 ਹੋਵੇ, 23 ਹੋਵੇ, 29 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ 667 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ 559 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ 901 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ 667 ਆ ਤਾਂ 667 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਐਸਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਐਸਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 667 ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ 25 25 625, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ 625। ਜਿਵੇਂ 26 ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 26 26 676, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 676 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 26 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 26 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ 23 ਆਉਂਦਾ ਗਾ। 26 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, 23 ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 23 ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਭਾਜ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 23 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 23 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 23 ਦੁਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਨਾਇਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ 23 ਗੁਣਾ 29 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 667 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ 559 ਦੀ। ਹੁਣ 559 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, 25 25 ਹੈ 625, 24 ਨੂੰ ਗੁਣਾ 24 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ 576। 576 ਦੇ ਲਵੇ ਤਵੇ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ 24 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 24 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ 23 ਆ ਗਿਆ। 23 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹ 23 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ 23 ਏਕਮ 23 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 23 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 23 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੇਕਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 19 ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਗਾ 17। ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਜਾਂ 19 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 19 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 17 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 17 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 13 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ 13 ਚੌਕ 52 ਤੇ 13 ਤੀਆ 39, ਯਾਨੀ 13 ਤੇ 43 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 559, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 901 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 901 ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 901 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ 30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 900 ਬਣਦਾ,
30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਏ, यानी मैं 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾइम नंबर ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 29 ਆ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾइम नंबर, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 23 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ऑब्वियस गल 19 आ जाऊगा, फिर आ जाऊगा मेरा 17, राइट आ। यानी कहने का मतलब की है कि मैनू देखना पैना कि इन्हां दे विच इह किसे ते वंडिया तां नहीं जांदा। ते जेकर मैं हुण देखा कि भाई 19 ते इह वंडिया जांदा, जे 17 ते देख लो तां 17 5 85 एंड 5 बच गए 17 30 51, यानी 17 गुणा इह 53 हुंदा गा। 17 गुणा 53 तो यह मतलब ये भी वंडिया गया, तो यह भी प्राइम नंबर नहीं हैगा। सो आंसर अपना की आ गया, नन ऑफ दीज आ गया। यानी कहने का मतलब थोनू जेकर पता करना हो कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो स्केयर के नेड़े तेड़े चले जाओ, तो उस तो बाद थोनू पता लग जू कि यह प्राइम नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने को लैके देखते हैं कि मान लो मैं पूछा कि भाई दसो 671 नंबर आ जोड़ा वो प्राइम नंबर है या नहीं है, 671 नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको पता कि 26 का स्केयर होंगे 676 के नेड़े तेड़े आ, तो मैं 26 तो नेड़े तेड़े वाले दे विच देख लूँगा, 23 देख लूँगा, फिर उस तो बाद मैं देख लूँगा जी 19, फिर मैं 17 देख लूँगा, फिर मैं फलाना तो उनका बाकी देख लूँगा। जे किसी ते यह वंडिया गया तो यदा मतलब यह प्राइम नंबर हैगा, जे यह वंडिया ना गया तो यदा मतलब यह प्राइम नंबर नहीं हैगा। सेम एग्जाम्पल आप होर लै सकते हैं, जिमें फॉर एग्जाम्पल मान लो 479 आ गया। हुण की यह प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उही गल है। सब तो पहला नंबरों का तुसीं जोड़ भी कर सकते हो। जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां नूं पता कि 2 3 5 इन्हां दी जिहड़ी डिविजिबिलिटी है, 2 का मतलब ईवन होना चाहिए, 3 का मतलब है जिहड़ा अच्छा ईवन दे विच की है कि ईवन दे विच सिर्फ 2 ही है जिहड़ा अभाज है, बाकी 4 6 इस तो बाद जिन्ने भी ईवन नंबर आउणगे वो सारे प्राइम नंबर नहीं है, कला 2 प्राइम नंबर है, राइट। 3 की डिविजिबिलिटी होगी भी वो 3 का यानी जे जोड़ कर दी तो 3 से डिवाइड होता हो, जिमें 6 6 12 7 19 तो यह 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यह मतलब 3 की डिविजिबिलिटी नहीं आता। एवें 5 5 10 ते 9 19, एवें 4 ते 7 11 ते जिहड़ा आ गया 9 20, ये भी 3 ते नहीं वंडिया जाता। उस तरीके दे नाल आपां देखांगे कि भाई 22 दे 484 जांदागा, तो उस दे नेड़े तेड़े आपां देख लांगे, तो जे वंडिया गया तो यह मतलब ये प्राइम नंबर हैगा। समझ लग गई। सो मेरे कहने का मतलब की है कि सिर्फ तुसीं की करना, वह स्केयर रूट देखना भी वो नेड़े तेड़े कित्थे जांदा, उदों थल्ले थल्ले प्राइम नंबरों नाल डिवाइड करके देख लो। जे किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया तो यह मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हैगा, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल करना, बहुत ही सौखा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की है, कहता ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू, कहता एक विद्यार्थी नूं कहता 10 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ सारिया अभाज संख्यावां दा जोड़ लभण लई कहा गया सी, उस नूं कहता ये रकम 180 मिली, इन्हां विचों किहड़ा बयान सही है, इन्हां विचों किहड़ा बयान सही है। क्वेश्चन वेरी वेरी गुड। की है देखो, कहता एक स्टूडेंट नूं कहा गया कि भाई फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 40, यानी 10 तो 40 के विचकार जिन्ने भी प्राइम नंबर है, जिन्ने भी अभाज संख्यावां कहना उन्हां दा जोड़ कर दे 180 आ गया। तो दसो इन्हां स्टेटमेंटां दे विचों की हो सकदा, कितना वधिया क्वेश्चन है, राइट। कहता पहला ऑप्शन की है, कहता ही मिस्ड 1 प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, कहता उन्हें 10 तो 20 दे विच एक प्राइम नंबर छड्डता होगा, तां ही 180 यानी वह सम बन गया। दूसरा कहता ही मिस्ड 1 प्राइम नंबर बिटवीन 20 and 30, यानी उन्हें 20 तो 30 दे विच जिहड़ी प्राइम नंबर आउंदा उसनूं छड्डता होना। तीसरा ही एडिड कहता 1 एक्सट्रा नॉन प्राइम नंबर, कहता उन्हें कोई नॉन प्राइम नंबर जिहड़ा प्राइम नंबर नहीं हैगा कहता उन्होंने जोड़ता होना, इस करके वह जोड़ 180 आ गया। जां फिर कहता भाई नन ऑफ दीज, ये तो हुण आपां नूं करके ही पता लगू, फिर ही आपां कह सकते हैं भी 180 बनता या नहीं। तो 10 ते 40 के विचकार जेकर मैं प्राइम नंबर देखा तो भाई 11 आउंदागा, फिर 13 आउंदागा, फिर 17 आउंदा, फिर 19 आउंदा, फिर 23 आउंदा, फिर 29 आउंदा, फिर 31 आउंदा ते फिर 37 आउंदागा। यानी ये मेरे प्राइम नंबर 10 तो 40 के विच आउंदे आ। जे हुण इन्हां नूं मैं जोड़ के देखा तो मैनूं फिर ही पता लगू भी ये 180 बन रहा जां 180 तो नेड़े तेड़े बन रहा, फिर आपां नूं पता लगू भी उन्हें कोई मिस करता। मिस करन दा मतलब तो कोई यह ज़्यादा बनता होगा जोड़, जोड़ा कि आह घट है। इत्थे मिस करन दा मतलब की है कि ऑब्वियस गल है जोड़ ज़्यादा बनता होगा, एक नंबर उन्हें एक्सट्रा ऐड करता, यदा मतलब यह नंबर घट बनता होगा। देख लेने पहले आप, चलो तो देखिया तो आह भाई आ गया 1 ते 3 4 ते 7 11 ते 9 20 ते 3 23 ते 9 32 ते 1 33 ते जिहड़ा आ गया 40 आ गया। 4 4 ते 1 5 ते 1 6 ते 1 7 ते 1 8 ते 2 10 ते 2 12 ते 3 15 ते 3 18, यानी ये तो 180 जोड़ ही बन गया। यदा मतलब कुछ भी नहीं हैगा, उन्हें सिर्फ की किया 10 तो 40 के विचकार जिन्ने भी प्राइम नंबर उन्होंने जोड़ किया तो वही 180 आ गया।
यानी ना तो उन्हें कोई मिस किया, ना ही उन्हें 20 तो 30 के मिस किया, तो ना ही उन्हें कोई नंबर एक्सट्रा ऐड किया। यानी इसका जो आंसर आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा नन ऑफ दीज। हुणे क्वेश्चनों के दम कोई नहीं, पर प्रॉब्लम की आ कि कोई ना तो एवें कराउंदा ते ना आपां करदे आ, आपां डर जाने आ। कारण की है कि यह सैल्फ स्टडी के नाल आउंदा गा। इस क्वेश्चन के कोई भी दम नहीं सी जे तुसीं सिर्फ कर लेंदे, पर कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के इन्ना ज़्यादा डर जाएंगे, वो भज ही जाएंगे भी पता नहीं प्राइम नंबर वगैरह की पुछ लिया, आपां इहनूं छड्ड के परां हो जाइए। चलो खैर अगले क्वेश्चन ते आउणा, देखो फिर प्राइम नंबर तो कहंदा जी इन्हां विचों किस नूं कहंदा किस नूं दो अभाज्य संख्यावां दे जोड़ वजों नहीं लिखिया जा सकदा। यानी कहण दा मतलब की आ, कहंदा विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। जे कहंदा दो प्राइम नंबर नूं जोड़ दईए तां इन्हां दे विचों कहंदा किस नूं नहीं लिखिया जा सकदा, यानी 78 नूं 88 नूं 51 नूं ते 60 नूं। तां इहनूं हुण करन दा तरीका देखो, बहुत सिंपल जी गल आ। यानी इन्हां ने कहण दा मतलब इन्हां दे की आ भी दो प्राइम नंबर नूं जोड़ के जेकर इन्हां चों कोई भी नंबर आ रहा गा तां इहदा मतलब फिर ओह लिखिया नहीं जा सकदा, ओबवियस गल आ। राइट आ, ध्यान दे नाल। यानी कहण दा मतलब की आ, यानी जे आपां 78 नूं देखीए, हुण 78 नूं आपां देखते हैं कि यह दो प्राइम नंबर नाल बनया जां यह बिना प्राइम नंबर तो भी बन सकता। यानी कहने का मतलब तरीका देखना। राइट, हुण जिवें इहने कहा भी सम ऑफ टू प्राइम नंबर वो आपां लिख नहीं सकते, यानी यह दो प्राइम नंबरों का जोड़ हो नहीं सकता। आपां वो देखना, जे होया तो यह मतलब आंसर है नहीं गा। राइट आ, देखो तो मैं की करूँगा, हुण मैनूं प्राइम नंबर लभना तो बहुत आ, हुण 78 तक तो प्राइम नंबर ही बहुत है, 78 तक बहुत प्राइम नंबर है, तो मैं उत्थों तक तो जा नहीं सकता। मैं की करदा इहदा अध कर दिना, जिवें इहदा अध कीता तो यह की आ जाऊगा 2 3 6 तो 2 9 18, यानी 39 आ गया। 39 के नेड़े तेड़े मैं देखा तो 39 के नेड़े तेड़े हैगा जी 37, जेकर मैं थल्ले नूं देखा तो 39 तो उपर हैगा जी 41। ਜਦੋਂ मैं 37 ਤੇ 39 ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ मैं 37 ਤੇ 41 ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, 7 ਤੇ 1 8 4 ਤੇ 3 7 ਇਹਦਾ 78 ਬਣ ਗਿਆ। यानी ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਟ ਬੀ ਰਿਟਨ। ਰਾਈਟ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 88 ਨੂੰ ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 44 ਆ ਗਿਆ। 44 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ मैं प्राइम नंबर देख लेना। 44 के नेड़े तेड़े एक तो 43 आ गया, इधर 41 आ गया। राइट है, जे मैं उपर देखा तो 47 आ जाऊगा। राइट है, पर जो मैं 47 ते 41 जोड़िया, जो मैं 47 ते 41 जोड़िया, ये तो दो प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबरों का जोड़ 88 बन गया। यानी ये भी नहीं हो सकता, इनू भी आप दो प्राइम नंबर के जोड़ नाल लिख सकते हैं। इस तो बाद आ गया जी 51। हुण 51 का मैं करके देखदा, 51 मैं 2 नाल कर लेना तो की आ जाऊगा 25 आ गया लगभग। राइट है, तो 25 के नेड़े तेड़े देख लेना, तो 25 के नेड़े तेड़े हैगा जी 23, तो उस तो बाद कह लो इधर हैगा 19 है ना। 25 के नेड़े तेड़े या तो 23 है तो या 19 है, तो उधरले पासे जेकर देखिए तो 29 है। राइट है, हुण कहण दा मतलब की है कि जेकर मैं 23 तो जेकर मैं हुण 23 मान ला या 29 मान ला या 19 मान ला। राइट है, तो 19 आह 9 यूनिट जो एक बनाना तो 2 ऐड करने पैणगे, यूनिट जो एक बनाना तो 2 एंड ते ऐड करना ही पऊगा मैनू। राइट है, इस तरीके इत्थे देखूंगा तो इत्थे भी मैनू 8 ऐड करना पऊगा, 8 ते 3 11 यूनिट जो एक बनूगा। यानी कहने का मतलब 23 दे विच मैं कुछ भी जोड़ा, 29 दे विच मैं कुछ भी जोड़ा, 19 दे विच मैं कुछ भी जोड़ना तो मेरा ईवन नंबर आ रहा। ईवन नंबर प्राइम नंबर कदे हुंदा नहीं, सिर्फ 2 नूं छड्ड के। इहदा मतलब आह मेरा आंसर बन जूगा। यानी जेकर मैं 23 मान ला तो 23 दे विच मैनू 28 जोड़ने पैणगे, जिहड़ा कि प्राइम नंबर नहीं हैगा। जे मैं 19 मान ला, जे मैं 19 मान ला तो 19 दे विच मैनू जे हुण इथों घटा भी लवो, चलो ऐ कर लो है ना, 19 दे विच मैनू की करना पऊगा 32 जोड़ने पैणगे, यानी ये प्राइम नंबर नहीं हैगा। जे मैं 29 मान ला तो 29 दे विच भी मैनू जोड़ने पैणगे, यानी ईवन नंबर जोड़ना पऊगा जिहड़ा कि प्राइम नंबर नहीं हैगा। यानी मेरा आही आंसर है। फिलहाल मैनू आंसर मिल गया। 60 नूं भी आपां करके देख लैंदे। 60 नूं जेकर मैं 2 ते डिवाइड करा तो यह कितना आ जाऊगा जी 30 आ जाऊगा। 60 नूं जेकर मैं डिवाइड करा 2 ते तो यह 30 आ जाऊगा। 30 के आसे पासे की आऊगा 29 आऊगा, तो इधर की आऊगा जी 31 आऊगा। 29 ते 31 ने जोड़ूंगा तो 60 आ गया। यदा मतलब दो प्राइम नंबरों का जोड़ 60 भी हो सकता, बट दो प्राइम नंबरों का जोड़ कदे भी 51 नहीं हो सकता है। किसी नाल भी करके देख लो, नहीं होना। राइट हो गया। सो यानी यदा आंसर जिहड़ा आ गया 51। बहुत ही सौखा, बहुत ही साधारण क्वेश्चन सी ये। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल देखो, कहंदा जी n बराबर a प्लस b वेयर a एंड b आर 2 प्राइम नंबरस। कहंदा n जिहड़ा वो a प्लस b आ, जिहदे विच कहंदा a ते b दोने प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कहंदा दसो इन्हां दे विचों स्टेटमेंट किहड़ी ट्रू हो सकती है। ठीक है, कहंदा यूनिट डिजिट ऑफ n कांट बी 8,
ਕਹਿੰਦਾ यूनिट डिजिट ਜਿਹੜਾ 8 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ n ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ यूनिट डिजिट 8 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਦੇਖੋ 78 ਆ ਪਿਛਲਾ यूनिट डिजिट 8 ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ a + b ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਆ, a + b ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇਕਰ यूनिट डिजिट 8 ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ यूनिट डिजिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ 7 ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਹ 11 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ 17 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ यूनिट डिजिट ਤਾਂ ਇਹਦਾ 8 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। यूनिट डिजिट ਤਾਂ 8 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਟ ਵੀ 8 नहीं, यानी 8 ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, यानी ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ n ਦਾ यूनिट डिजिट ਕਹਿੰਦਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ 11 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ 19 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ 11 ਹੋ ਸਕਦਾ, 29 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ यूनिट डिजिट 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, यानी ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ n ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ n ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, n ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ n ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, यानी a plus b ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। a plus b ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ n ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, 2 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3, 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a plus b ਜੇਕਰ a plus b 2 ਤੇ 3 ਹੈ, a plus b ਜੇਕਰ 2 ਤੇ 3 ਹੈ, यानी 2 ਤੇ 3 5 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਇੰਨਾ ਜਵਾਕ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ शायद औखी लगे एंड जवाब कहे छड्ड पर यार अपन नंबर सिस्टम करते नहीं, पर जेकर तुसीं करोगे तो इन्नी डिटेल दे विच करना पैना है। बट ये सैल्फ स्टडी दे नाल ज़्यादा आउंदा, दिमाग आप लाउणा पैंदा गा, राइट। सो कहण दा मतलब की आ नन ऑफ दीज दा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, कहना सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ईवन नंबर्स। ईवन नंबर का मतलब होंदा जिहड़ा 2 4 6 8 10 हो गया, राइट। कहना 3 कंजिक्यूटिव ईवन नंबर जिहड़े ऑलवेज डिविजिबल होणगे तां दसो। 3 लगातार सम संख्यावां दा जोड़ हमेशा कहना इन्हां द्वारा वंडिया जा सकदा। 12 हो सकदा, 6 हो सकदा, 18 हो सकदा ते जां फिर 24 हो सकदा। देखो ध्यान दे नाल, मैं पहला नंबर मान लेना 2n क्योंकि आपां नूं ईवन कहा, ईवन कहा तो मैं 2n मान लिया। दूसरा नंबर की हो जाऊगा 2n + 2, राइट। तीसरा नंबर की हो जाऊगा 2n + 4। जे मैं तिन्ना का जोड़ करा तो 6n + कितना बन गया, 6 बन गया। 2n 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 6n बन गया, 2 ते 4 6। यानी जो मैं 6 ते इहनूं कीता तां n + 1 आ गया। यानी कहने का मतलब जो मर्जी नंबर आ जाए वो 6 का मल्टीपल ही होगा। जो मर्जी नंबर आ जाए n की वैल्यू जो मर्जी रख लो, 6 का मल्टीपल ही होगा। ਇਹਦਾ मतलब है ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होगा। ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 इज द राइट आंसर। मान लो किसी ऐसे होशियार जवाक ने मान लो पहला वैल्यू n मान ली भी मैं n नूं ईवन नंबर मान लेना, क्योंकि अपन ईवन नंबर कहा। जे मैं n नूं ईवन नंबर मान लिया तो फिर दूसरा मेरा की होगा n + 2 होगा एंड तीसरा मेरा की होगा n + 4 होगा। कहता कि जो मैं इनू जोड़ किया, तिन्हों का जोड़ किया तो वह बन गया जी 3n + 6 बन गया। 3n + 6 बन गया। जो मैं 3 कॉमन कढ़िया तो इत्थे n + 2 आ गया। तो हुण कहना ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 भी हो जाऊगा, ऑब्वियस गल है। पर 3 आपां नूं ऑप्शन दे विच नहीं दिख रहा। एंड एक चीज़ होर, आह n + 2 भी तो एक ईवन नंबर ही बन गया। आह n + 2 भी तो एक ईवन नंबर ही बन गया। ईवन नंबर का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई होगी n + 2 है ना। n + 2 यानी ईवन नंबर यानी 2 का डिविजिबल है। तो मैं 2 नूं कॉमन कढ़ लेना। जे मैं 2 नूं कॉमन कढ़िया तो इत्थे n + 1 ही बच जूगा, यानी ये 6 बच गया। यानी राइट आंसर फिर 6 आ गया। जिमें मर्जी कर लो, राइट है। यानी कहने का मतलब जे तुसी आह मन्निया तो इस तरीके दे नाल भी आ सकता, जे तुसी आह मन्निया तो फिर तो डायरैक्ट ही आता। यानी 6 की डिविजिबिलिटी यह ऑलवेज करूगा ही करूगा। राइट हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहता P है जोड़ा वह 3/5 है, Q है जोड़ा वह 7/9 है एंड R है जोड़ा वह 5/7 है। तो इन्हों का कहता रिलेशन दसो भाई किहड़ा वड्डा छोटा है। देखो बहुत सौखा क्वेश्चन है। जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे तो जो मैं इन्होंने दोनों के कंपैरिजन करना तो 3 9 27 इधर लिख लो, 7 5 35 इधर लिख लो। जोड़ा वड्डा गा वह वड्डा हो गया, जोड़ा छोटा वो छोटा हो गया। यानी कहने का मतलब 3 9 27 आह 27 35 तो छोटा गा। तो यदा मतलब जोड़ा है इधर ला, यानी आह जी P है यह लैस दैन Q हो गया। यानी P लैस दैन Q हो गया। मैं पहला रिलेशन ही चैक कर लेना ऑप्शनों के नाल। P लैस दैन Q इस च हैगा, P लैस दैन Q इस च नहीं हैगा, P लैस दैन Q इस च हैगा, P लैस दैन Q इस च नहीं हैगा।
तो मेरे 2 ऑप्शन डायरैक्ट कटे गए। इस तो बाद देख लें हुण जो P छोटा है इस तो P का कंपैरिजन मैं 5/7 नाल भी कर लेना, यानी 3/5 का कंपैरिजन मैं 5/7 नाल भी कर लेना। तो 3 7 21 आ गया, 3 7 21 आ गया, 5 5 25 आ गया, यानी P लैस दैन आर भी है, P लैस दैन आर भी है। तो आह ऑप्शन के P लैस दैन आर है, बिल्कुल है राइट। इत्थे P लैस दैन आर है, बिल्कुल है, इत्थे कट्टिया गया। यानी हुण आपां नूं ये नहीं पता भी क्यू ते आर चों किहड़ा छोटा है। इत्थे क्यू छोटा आर तो है, इत्थे आर छोटा क्यू तो, वो आपां देख लैंदे हां। हुण क्यू ते आर अपने कोले आह पिया, ये हैगा 7/9 ते ये हैगा 5/7, 7 7 49 गा ते 5 9 45 है। यानी कहने का मतलब जिहड़ा क्यू है वह ग्रेटर दैन आर है, या कह लो आर है जिहड़ा वो लैस दैन क्यू आ। आर लैस दैन क्यू इत्थे नहीं हैगा, सो आर लैस दैन क्यू इत्थे हैगा, यानी अपना आही आंसर आ गया है राइट। सो बहुत तरीके जे मान लो फॉर एग्जाम्पल एवें आ जाए कि आह जी 11/13 ते आह 12/15, तो दसो इन्हां दे विचों छोटा वड्डा किहड़ा। बहुत सिंपल है, तो 11 नूं 15 नाल करोगे तो 165 आ गया, 12 नूं 13 नाल करोगे तो 156 आ गया। यानी कहने का मतलब की है कि 165 ग्रेटर दैन 156, तो यदा मतलब 11/13 12/15 तो वड्डा है। इस तरीके दे नाल क्वेश्चन तुसीं कर सकते हो। होर एग्जाम्पल ले लेना, जिवें मान लो फॉर एग्जाम्पल आ गया कि 9 मान लो इत्थे 11 आ गया, इत्थे आ गया मान लो 13 मान लो 11, 13 होर मान लो चलो 13/11 कह लो राइट। तो हुण इहदे विच तां सीधा पता लग जांदा है। तो इत्थे मान लो 13 मान लो 15, 13/15 आ गया राइट। तो हुण इन्हां दे विचों छोटा वड्डा किहड़ा, तो सीधा करना गा 15 9 135 आ गया, 11 नूं 13 नाल करोगे तो 143 आ गया, तो 135 143 तो छोटा गा, 135 143 तो छोटा, तो यदा मतलब 9/11 छोटा, 13/15 वड्डा गा राइट। यानी कहने का मतलब बहुत सौखे तरीके दे नाल तुसीं ये चीज़ां कर सकते हो राइट। सो मेरे हिसाब दे नाल समझ गए होवोगे राइट। हो गया। इस तो बाद जी नैक्सट क्वेश्चन आ गया, इहदी वैल्यू दसनी है। इहो जिहे क्वेश्चन भी पेपरां दे विच खूब आउंदे ने। हुण इहनूं समझाउण दे लई मैं तुहानूं एक चीज़ दस दांगा, देखो ध्यान दे नाल। जिवें हुण इत्थे आपां नूं इह दित्ता होया ध्यान दे नाल कि a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, यानी कहने का मतलब जेकर मैं 0.07 नूं, जेकर मैं 0.07 नूं a मान ला, तो इत्थे a गुणा a की बन गया, a³ बन गया। जेकर मैं 0.05 नूं b मान ला, तो इत्थे की बन गया, b गुणा b बन गया, यानी b³ बन गया। इत्थे की आ गया, इत्थे a² आ गया, a² आ गया, प्लस इत्थे a आ, आह b है, यानी a गुणा b आ गया। इत्थे की है प्लस b², यानी a³ माइनस b³ जिहड़ा आ गया भाई वो वटा a² प्लस ab प्लस b² आ गया। यानी कहने का मतलब की है कि a³ माइनस b³ बराबर किहदे हुंदा गा, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab दे बराबर हुंदा गा राइट। यानी कहने का मतलब यही है कि a³ माइनस b³ दा यह फार्मूला गा राइट। जे हुण मान लो इत्थे मैं वैल्यू पुट करा a³ माइनस b³ दे विच, इस दी वैल्यू पुट करा a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² प्लस ab, ते नीचे भी अपने कोले ओही आ, यानी a² प्लस b² प्लस ab, ते आह जिहड़ा हैगा इहदे नाल कट्टिया जाऊ, यानी सिर्फ a माइनस b ही बच जाऊगा। एंड a नूं आपां मन्निया 0.07 एंड b नूं आपां मन्नियागा 0.05, ते यह घटा के कितना आ जाऊगा 0.02 आ गया। यानी सीधा आंसर अपने कोले आ गया 0.02। आपां नूं कल्ला कल्ला चीज़ सॉल्व करन दी या गुणा करन दी लोड़ नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी पक्का पेपर दे विच आउंदा है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला भी देखो उस तरीके का, जिवें हुण इत्थे आ गया a³ प्लस b³ आ गया। हुण a³ प्लस b³ किहदे बराबर हुंदा गा, यह हुंदा गा a प्लस b, a² प्लस b² ते माइनस ab। जिहड़ा मैं पिछला कराया गा बस साइन चेंज करने हैं, यानी जे इत्थे a³ प्लस b³ होवे तो फिर इत्थे साइन चेंज हो जाऊगा, a प्लस b आ जाऊगा, इत्थे a² प्लस b² ते इत्थे माइनस ab आ जाऊगा, होर कोई भी फर्क नहीं हैगा। तो वही चीज़ है कि उपर आपां नूं a³ प्लस b³ दिता होया, जे मैं 0.73 नूं a मान ला, 0.73 नूं a मान ला, तो 0.27 नूं मैं b मान ला, तो a³ प्लस b³ हो गया, थल्ले a² प्लस b² ते माइनस ab आ गया। यानी इहदी थां ते मैं की लिख सकदा, a प्लस b ते उस तो बाद a² प्लस b² माइनस ab, जिहड़ा कि नीचे भी वही लिखा होया a² प्लस b² माइनस ab, ते आह कट्टिया गया, यानी a प्लस b अपने कोले बच गया। यानी इन्हां दोनों का मैं जेकर जोड़ करदा तो कितना आ जाऊगा 1.0, यानी एक आंसर आ गया। यानी इहदा ए ऑप्शन आंसर अपना बन जाऊगा। राइट हो गया।
सो इस तरीके दे नाल भाई क्वेश्चन करने बनते हैं एंड इन्नी ही स्पीड दे नाल करने आ तां ही पेपर दे विच जाके वधिया तरीके नाल हो सकते हैं। अगला देखो ध्यान दे नाल, हुण 27.5 नूं मैं ए मान लेना एंड 19.3 नूं मैं बी मान लेना, तो यह की बन जूगा ए माइनस बी दा होल स्केयर प्लस ए प्लस बी दा होल स्केयर बन गया, राइट। तो नीचे की आ गया जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, नीचे की आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, यानी आह ए है तो आह बी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया, राइट। हुण इहदा फार्मूला ध्यान दे नाल देखो, ਇਹਦਾ फार्मूला की है कि ए प्लस बी का होल स्केयर जोड़ा होंगे वह की होंगे जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होंगे, राइट। एंड ए माइनस बी का जोड़ा होल स्केयर होंगे वह की होंगे जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर ते माइनस 2ab हो जाऊगा, राइट। हुण इत्थे ध्यान दे नाल देखो, इत्थे ध्यान दे नाल देखो कि इत्थे आपां नूं ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस ए प्लस बी का होल स्केयर दिता होया, यानी कहने का मतलब इन्हां दोनों का जोड़, जिवें इन्हां दोनों का जोड़ कर दूंगा तो ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर इधर आ जाऊगा, राइट। जे मैं इधर प्लस करा तो इधर आह ए स्केयर है, इत्थे ए स्केयर है, ये 2a स्केयर बन गया, बी स्केयर इत्थे है, बी स्केयर इत्थे है, तो आह 2b स्केयर बन गया, तो आह माइनस ते प्लस कट्टे जाएंगे, राइट। जे इनके 2 कॉमन कड्ढां तो 2 कॉमन कड्ढ के तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, यानी जो मैं इन्होंने दोनों का जोड़ किया, जो इन्होंने दोनों का मैं जोड़ किया, राइट। यानी कहने का मतलब मैं यदि थां ते की लिख सकदा 2a स्केयर प्लस बी स्केयर, जो मैं इन्होंने दोनों का जोड़ किया तो जिमें रिजल्ट आयागा कि 2 कॉमन कड्ढ के ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, उही मैं इत्थे लिख लिया। तो नीचे की अपने को ऑलरेडी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी यह कट्टिया गया, सीधा अपने को आंसर 2 रह गया, 2 इज द राइट आंसर। समझ लग गई। सो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत आसान ने, जिन्हों का पेपर क्लीयर होंगे उन्होंने ये उंगलों से होंगे ने क्वेश्चन, राइट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान दे नाल, अगला की आ गया, कहता ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है, यानी आप ए मान लिया 1.5 नूं, बी मान लिया आप 4.7 नूं एंड सी आप मान लिया 3.8 नूं, तो ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया प्लस सी क्यूब हो गया, माइनस 3 आ गया, 3 आ गया, मुड़ के की आ गया ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, ध्यान देना चेक कर लो भावें, ठीक है। नीचे की आ गया ए स्केयर आ गया प्लस बी स्केयर आ गया प्लस सी स्केयर आ गया, फिर आ गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ध्यान देना माइनस ए बी आ गया माइनस बी सी आ गया माइनस सी ए आ गया, राइट। हुण ये भी एक फार्मूला होंदा, ये फार्मूला की होंदा ध्यान दे नाल देखो, ध्यान दे नाल ये की होंदा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो यह फार्मूला होंदा जी ए प्लस बी प्लस सी, तो इत्थे आ जाऊगा जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी यदि थां ते मैं ए प्लस बी प्लस सी ते आ सारा लिख सकदा गा, तो मैं लिख दिना गा। यदि थां ते जो मैं आह लिखिया ए प्लस बी प्लस सी लिखिया, तो इत्थे उही आ जाऊगा जिहड़ा नीचे ऑलरेडी हैगा गा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी ते माइनस सी ए, जिहड़ा कि एज इट इज़ ही नीचे लिखिया होया है, नीचे लिखिया होया है। ध्यान नाल आह कट्टे जाणगे, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, इन्हां तिन्नां दा जोड़ कर दो, 1 4 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੇ 3 8 ਆ ਗਿਆ, 8 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 7 12, 12 ਤੇ 8 20, 2 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੋ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 8 ਤੇ 2 10 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, 10 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 10 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भी आसान है, देखो कहता 165 का जोड़ा स्केयर है वो कहता जी 27,225 है, 165 का स्केयर आपको दिता होया, उदों बाद आपको कहता भी रूट के आह, हुण ध्यान दे नाल एक चीज़ नोट करनी है कि जो रूट के आपको 27,225 दिता होया, इत्थे जिहड़ा पॉइंट लाया पॉइंट 225 वह मैं थले तार लेना 100 बन गया। हुण जो मैं 100 का रूट करूँगा, जो मैं 100 का रूट करूँगा तो यदा रूट करूँगा तो मैनू पता है 27/2025 का रूट है जोड़ा वो कितना आ गया 165 आ गया, जोड़ा कि मैंने दिता ही होया, तो 100 का रूट आ गया, जो मैं स्केयर रूट किया तो 10 आ जाऊगा, यानी यह 16.5 बन गया, यानी यह 16.5 बन गया, राइट। यानी इत्थे 2 पॉइंट सीगे तो 1 रह गया, इत्थे 4 पॉइंट है तो फिर 2 रह जाएंगे, यानी इत्थे की आ जाऊगा आह 16.5 आ गया, आह 2 थले आ जाएंगे, यानी यह की आ जाऊगा 165/100 आ जाऊगा। क्यों, जो यदा आप तारांगे तो 4 जीरो तारांगे, 4 जीरो तारांगे तो फिर रूट का करके 2 रह जाएंगे, जिमें इत्थे पहला 2 सी तो 1 रह गई, 4 आ तो 2 रह जाएंगे, राइट। यानी 1.65 आ जाऊगा, यानी यदा कितना आ गया 1.65 आ गया,
सेम ਇਹਦਾ 6 है तो फिर 3 ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਊਗਾ यानी ਇੱਥੇ 0.165 आ जाऊगा 6 है तो फिर 3 रह जाएंगे तो फिर 3 बिंदु छੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ रूट करता यानी कहने का मतलब की है कि 16.5 ਨੂੰ 1.65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ फिर 0.165 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 आ गया 6 ਤੇ 5 11 आ गया 6 6 12 ਤੇ 1 13 आ गया ਤੇ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 18 यानी 18315 अपना आंसर आ गया 18.315 इज द राइट आंसर कितना आसान है तो कितना सिंपल है कहता इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 120 द सम ऑफ द इंटीजर्स इज जेकर कहता 3 लगातार पूर्ण अंकों का गुणाफल कहता 120 होवे गुणफल 120 होवे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ 120 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 120 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ 24 5 120 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ 10 ਗੁਣਾ 12 ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 5 ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 12 ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 24 ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ 24 ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ 4 6 24 4 6 24 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 6 24 ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕੰਜੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਯਾਨੀ 4 5 ਤੇ 6 ਆ 4 5 20 ਤੇ 20 6 120 ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲੂੰਗਾ 5 दूनी 10 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲੂੰਗਾ 4 ਤੀਏ 12 4 ਤੀਏ 12 यानी आ 4 ਤੇ 5 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ 2 ਤੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੇ 6 ਬਣਾ ਦੇਣਾ यानी फिर ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ 4 5 6 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਤੇ 5 9 ਤੇ 6 15 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਜੀ 15 ਸੋ 15 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 15 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ समझ में आई बात कईयां नूं लगदा हो कि मैं यह चीज़ां सॉल्व कर रहा सॉल्व नहीं भाई ये मैं समझा रहा कि थोनों एवें ही सॉल्व करने चाहिए ने हुण एक वीडियो दे विच जेकर तुसीं कहोगे कि इत्थे नंबर सिस्टम खत्म हो जाए उवें यह पॉसीबल नहीं हैगा जस्ट ये उवें ही रिवीजन है जिवें आपां करंट अफेयर दी करदे जिवें आपां जीके दी करदे हाँ समझ में आई बात अगला क्वेश्चन कहंदा द डिनोमीनेटर कहंदा किसे ध्यान दे नाल कहंदा किसे भिन्न दा जिहड़ा हर है कहंदा उस दे अंश नालों एक वध हुंदा ठीक है जेकर कहंदा एक नूं अंश ते हर दोवां विचों कट्टिया जांदा तां कहंदा जिहड़ा भिन्न आउंदा 0.5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ यानी फ्रैक्शन ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ फ्रैक्शन बेसिकली ਕੀ ਸੀ डिनोमिनेटर ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ यानी कि अंश ਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ x + 1 ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 0.5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ 0.5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 0.5 ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x - 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ x ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2x - 2 ਬਰਾਬਰ x ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ x ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ x ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈ x ਦਾ यानी आह x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਇਹ x ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ x ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ x ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ x ਤੇ x + 1 ਸੀ ਯਾਨੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਭਰਿਆ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2/3 ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2/3 ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 45 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਇਫ 45 ਇਜ਼ ਐਡਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 87 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ 78 ਜਾਂ 78 ਕਹਿ ਲਓ 87 ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਡਿਜਿਟ ਉਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ इंटरचेंज हो गए अपने पोजीशन चेंज कर गए ठीक है हुण 2 डिजिट का नंबर है देखो आप जो छोटे होंगे करते हैं मान लो आह 37 नंबर है तो आह इकाई है दहाई है यानी 1s आह 10s यानी इन्हूं मैं 30 + 7 भी लिख सकदा 30 + 7 भी लिख सकदा राइट है 30 + 7 भी लिख सकदा एवें 47 है मान लो तो इकाई है दहाई है यानी दहाई का मतलब 40 + इन्हूं मैं 7 लिख सकदा इस तरीके दे नाल जे मान लो 347 होवे तो इकाई है दहाई है सैकड़ा सैकड़े का मतलब हो गया 300 दहाई का मतलब हो गया 40 एंड इकाई का मतलब हो गया 7 यानी इनू मैं इस तरीके दे नाल भी लिख सकदा जे मान लो अपने कोले
1000 मान लो 10 है तो इसनूं मैं किवें लिख सकदा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी इनू मैं हज़ार लिख सकदा, इनू मैं 0 ही लिखूंगा, यानी ऐ कर लो। यह मेरा हैगा दहाई, यानी इनू मैं ऐ लिख सकदा, तो आह मेरा एक रह गया, यानी इन्हों जो जोड़ोगे तो ऑबवियस गल है यह की बन गया तुहाडा, सॉरी इत्थे 10 आऊगा, इत्थे 10 आऊगा तो यह 1010 ही बन गया। जे मान लो एवें करके ले लो, एक होर ले लें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इनू मैं हज़ार यानी 4000 लिख सकदा, इनू मैं 700 लिख सकदा, इनू मैं 660 लिख सकदा, तो इनू मैं 3 लिख सकदा, यानी जितों स्टार्ट करो बाकियों को 0 कर दो, ठीक है, जितों स्टार्ट करो बाकियों को 0 कर दो, जितों स्टार्ट करो बाकियों को 0 कर दो, राइट। यानी यह एक तरीके के 2 डिजिट नंबर लिखण का यानी जो है तरीका गा, राइट। हुण आपां नूं इत्थे 2 डिजिट नंबर तो पता ही नहीं, तो 2 डिजिट नंबर में मान लो एक्स ते वाई मान ले, यानी इनू मैं की लिख सकदा गा, यह इकाई है, यह दहाई है, दहाई का मतलब 10 नाल मल्टीप्लाई, इनू मैं 10x + y लिख सकदा, कहंदा कि 2 डिजिट नंबर है, वह कहंदा 3 गुणा 3 टाइम्स है, 3 गुणा काहदा सम ऑफ डिजिट, डिजिट आप आह मन्निया इन्हां दोनों का जोड़ दा वो 3 गुणा, तो यह बन गई स्टेटमेंट, राइट। यानी इनू मैं लिख सकदा 10x + y, इनू मैं लिख सकदा 3x + 3y, यानी इत्थे आ गया 7x तो इत्थे आ गया जी 2y, राइट। 7x बराबर यानी 2y यह आ गया, राइट। हुण x ते y की जेकर मैं रेशो देखा, x ते y की जेकर मैं रेशो देखा तो 2 ते 7 आ गई, यानी कहने का मतलब जिहड़ा अखर है x वो 2 का मल्टीपल होगा, y है जिहड़ा वो 7 का मल्टीपल होगा। सब तो पहला मैनू 27 ही दिख रहा है, जे मैं ये मल्टीपल एक एक का ही मान ला तो मैं 27 ही देख रहा, यानी x ते y 27 हो सकता है, x की वैल्यू जेकर मैं पुट करदा 2, y की 7 करदा तो 27 हो सकता। इस तो बाद कहता जेकर कहता इन्हों के आप 45 ऐड करिए तो डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मैं 27 के 45 ऐड करके देख लेना, 27 के 45 ऐड किए तो 72 बन गया, ये तो 27 का उल्ट हो ही गया, ये 27 है तो आह डिजिट चेंज हो गए, आह इत्थे आ गया वह उधर चलिया गया, तो 72, यानी कहने का मतलब वह अखर फिर 27 ही है, राइट। सो आंसर इसका की आ गया, आपको पूछा की आ कि उन्होंने डिजिटों का सम की आ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, तो 27 के जोड़ कर लो भावें 72 का कर लो, ऑबवियस गल है 7 ते 2 9, यानी आंसर की आ गया अपने कोले 9 आ गया, आंसर की आ गया अपने कोले 9 आ गया। समझ में बात आई? बहुत ज़्यादा आसान तो बहुत ज़्यादा सिंपल। जेकर किसी को काली लग रहा है भी आराम नाल पढ़ाओ सर, अज थोड़ा जिहा लेट हो गया क्योंकि जीके डिक्शन भी करानी है, असल च मैं किसी मीटिंग च फस गया, चलो हो जाता है ठीक है, बट करने की कोशिश करो, इन्हों वीडियो में थोड़ा जिहा बैक करके देख लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। चलो कहता P Q एंड R आर 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कहता P Q ते R वाधे क्रम च कहता है ना, P ਅਤੇ Q चढ़ते क्रम च कहता लगातार 3 ऑड संख्यावां ने, ऑड संख्यावां ने, राइट, ऑड संख्यावां ने, राइट। जे कहता 3 गुणा P का मुल कहता R नालों 2 गुणा घट 3 है तो R का मुल पता करो। देखो कितना वधिया क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ कहता 3 टाइम्स, देखो पहला जे मान लो मैं सिंपल जे तरीके 1 3 5 मान ला, जे मान लो मैं 1 3 5 मान ला तो Q की वैल्यू की होगी भला, Q की वैल्यू होगी जी P + 2, राइट। तो होर Q की वैल्यू की हो सकती है R - 2, यानी कि जो ऑड नंबर होणगे तो एक एक अखर छड्ड के होणगे, जे मैं कल्ले Q की वैल्यू देखनी होवे तो या तो मैं P + 2 यानी 1 + 2 3 बन गया, जां 5 - 2 यानी R - 2 3 बन गया, एवें मैं लिख सकदा, यानी Q की वैल्यू मेरे को या तो P + 2 हो सकती है जां R - 2 हो सकती है। बिल्कुल मैंने एक पासे लिख लिया। उस तो बाद मैंने कहा कहता इफ द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स P, यानी 3 का P का मैं 3 गुणा करता, वह कहता 3 घट है 2 टाइम्स R, यानी 2 टाइम्स R नालों वह 3 घट है, यानी 3P बराबर कि आ गया 2R - 3 आ गया, ठीक है जी, ठीक है। इस तो बाद की हो गया, हुण मैं की कर दांगा, जदों Q नूं मैं P + 2 लिख सकदागा एंड Q नूं मैं R - 2 लिख सकदागा, तो मैं P की वैल्यू इत्थों कढ़ लेना, P की वैल्यू कढ़ी तो R - 4 आ गई, P की वैल्यू जो मैं कढ़ी तो आह प्लस का 2 उधर ले गया तो यह -4 यानी कि R - 4 आ गई। जो मैं इत्थे P की वैल्यू पुट की 3 R - 4 तो इधर मेरे को 2R - 3 हैगा, तो आह कितना बन गया जी 3R - 12 2R - 3, यानी 3R इत्थे हो गया इन्ना जी, तो आह कितना हो गया, यह 9 हो गया, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 9 आ गई। तो अपन फाइंड द वैल्यू ऑफ R ही पूछा सी, R ही पूछा सी, तो फिर R की वैल्यू अपने को 9 आ गई, तो 9 इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, 9 इज़ द राइट आंसर। जेकर तुसी मैथ कंप्लीट करना चाहते हो तो अपना मैथ का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, तुसी मैथ के कोर्स के जाके भी सारा कुछ देख सकते हो एंड वधिया तरीके दे नाल होर बहुत सारे चैप्टर कराए हुए हैं। हालांकि ये मैनू लगता भी सैल्फ स्टडी वाला ही पोर्शन है, राइट है। चलो खैर अगला आ गया, कहता जी हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर विच एंड इन 7 एंड आर डिविजिबल बाय 3। देखो कहता किन्नियां दो अंकी संख्यावां हैं जो कहता 7 विच खत्म होंदियां ते 3 नाल वंडियां जांदियां। देखो ध्यान दे नाल हुण 7 ते आपां जेकर शुरुआत करिए तो सब तो पहलां तो 0 7 है, इनू 7 नूं कह सकते 7 ते एंड हो गया, बट 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा। 17 देखिया 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा, फिर 27 देख लो 3 ते डिविजिबल हैगा, फिर 37 देखिया 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा, फिर 47 देखिया 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा, फिर 57 देखिया 3 ते डिविजिबल हैगा, यानी 57 आ गया। फिर उस तो बाद 67 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा, फिर आप 77 देखिया 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा, फिर 87 देखिया 3 ते डिविजिबल हैगा, यानी ये भी आ गया। 97 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा, तो इदों बाद अपने 2 डिजिट खत्म हो गए, यानी 27 बनया, एक 57 बनया, तो एक 87 बनया, यानी 3 ही एक ऐसे अखर है ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ खत्म होंदे ते 3 ते वंडे जाते हैं, यानी 3 ही उहदा आंसर आ जाएगा। मैं इस करके इन्नी छेती करवा रहा कि क्वेश्चन नूं देख के डरना नहीं, जो कह रहा बस उवें कर दो, आंसर तुहाडे सामने आ जाएगा। जिवें हुण अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान दे नाल, बहुत सोहना क्वेश्चन है। कहना ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर 7, कहता ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर 7, कहता 7 नाल मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल द डिजिट्स कहता प्रोडक्ट अपीयर 3s, यानी कहता जदों आप 7 नाल मल्टीप्लाई इन्हां दे विचों किसी नाल कर दईए तो सारे कहता अखर 3 के मल्टीपल बन जाण। हुण सारे अखर 3 के मल्टीपल जेकर बन गए तो वह आह अखर सब तो पहला दिखते आपां नूं। 3 का मल्टीपल सब तो छोटा 6 अंकों का आही हो सकता, क्यों भला 6 अंकों का होगा। देखो ध्यान दे नाल, आह अंक किन्ने 5, आह अंक किन्ने 5, आह अंक किन्ने 5, आह अंक किन्ने 5। जदों मैं इनू 7 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 अंकों का नंबर आऊगा, इनू 7 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 अंकों का नंबर आऊगा, इनू 7 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 अंकों का नंबर आऊगा, इनू 7 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 अंकों का नंबर आऊगा। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 6 नंबरों का सब तो छोटा अंक जेकर मैं देखा, यानी जो 3 का हरेक अखर 3 का मल्टीपल हो तो हरेक अखर 3 होगा, तो हरेक अखर 3 का मल्टीपल बन गया ऑटोमैटिकली, राइट है। एक इत्थे स्ट्रैटेजी की आउंदी है कि जदों भी मान लो 2 2 2 2 2 2 यानी आह 3 तो 6 बारी रिपीट होण, बेसिकली ये हमेशा 3 7 है ना, जां कह लो फिर 11 101 1001 इन्हां ते हमेशा ये वंडे जाणगे, हमेशा वंडे जाणगे, हमेशा वंडे जाणगे, हमेशा वंडे जाणगे, राइट है। पहला भी कराए होया, जेकर 6 डिजिट नंबर वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब जेकर मान लो एवें है 666 66 66 एवें करके, तो हमेशा इन्हां अखरां ते वंडे जाणगे। जेकर मान लो एवें है, जेकर मान लो एवें है तो हमेशा वो वंडे जाणगे। बट जदों आप 6 नूं देखिया, चलो ये तो 3 का मल्टीपल हैगा, हुण जिवें आह गा ये वंडिया तो जाऊगा 7 ते, पर कला कला अखर 3 का मल्टीपल नहीं हैगा। तो कला कला अखर जेकर 3 का मल्टीपल होगा अपीयर 3s कहता, तो फिर आही अखर एक हो सकता गा, जां उस तो वड्डा फिर आह। पर आपां पहले छोटे तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपां नूं स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा गया, द स्मॉलेस्ट सच नंबर इज। तो यानी कि जेकर मैं नंबर मान लो 3 3 3 3 3 मान लिया, तो मैं 7 ते जदों इहनूं डिवाइड करके देखा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आया, 7 नाल मल्टीप्लाई करके आया, तो इन्हां दे विच्चों ही किसी नाल मल्टीप्लाई की होनी आ, आपां आह अखर मान के डिवाइड कर दिंदे आ। तो जदों मैं डिवाइड किया तो 7 चौका 28 आ गया, 5 आ गया, 7 7 49 आ गया, 4 आ गया, 7 6 42 आ गया, 1 बच गया, 7 1 7 आ गया, 6 बच गया, 7 नाम 63 आ गया, यानी 47 619 आंसर आ गया। यानी आ अपना आंसर पिया गा, यानी आही स्मॉलेस्ट नंबर है जिन्हों आप 7 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो उदों बाद कला कला अखर 3 का मल्टीप्लाई दिखाऊगा, 3 की यानी प्रोडक्ट दिखाऊगा, राइट हो गया। कितना सोहना क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक थोड़ा जिहा दिमाग लगाउणा सी। अगला क्वेश्चन कहता जी व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, कहता इहदा यूनिट डिजिट की होगा, 1 की पावर 101, 2 की पावर 101, 3 की पावर 101, 4 की पावर 101, तो एवें करते करते कहता जी 99 99 की पावर 101। तो दसो कहता यूनिट डिजिट की आऊगा। बहुत ही वधिया क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दे नाल देखो। अच्छा ये सारा कुछ अपनी मैथ की बुक के मैनू पुछते रहते कि सर अपनी मैथ की बुक का लैवल की आ,
ਆਹ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਲੈਵਲ 2। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 101, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 101, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇੜਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 2 ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 4 ਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 8 ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆ 6 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 2 ਆਊਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 4 ਆਊਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 8 ਆਊਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਆਊਗਾ। ਯਾਨੀ 2 4 8 6, 2 4 8 6। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 9 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 7 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 1 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ 81। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ 3 9 7 1, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰੋਗੇ, ਸੇਮ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰੋਗੇ, ਸੇਮ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਵਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੇ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ 6 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 6 ਦਾ 1 6 ਆਊਗਾ, 6 ਦਾ 2 36 ਆ ਗਿਆ, ਯੂਨਿਟ 6 ਦਾ 3 ਵੀ 6 ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 1। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 25, 4 25, 25 ਚੌਕਾ 100 ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ 2, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ 6 ਹੁੰਦਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ 25 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 3 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 4 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ 25 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 101 ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 6 ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6 ਦੂਣੀ 12। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ 6 ਗੁਣਾ 2, ਯਾਨੀ 6 ਗੁਣਾ 2 ਯਾਨੀ 12 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 2 ਬਣੂਗਾ। ਸੇਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ 81 ਹੁੰਦਾ, 1 ਆਊਗਾ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਉਵੇਂ 25 ਆਊਗਾ ਤੇ 1 3 ਬਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ 1 ਹੀ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ 25 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ। 1 ਗੁਣਾ 3, 1 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਊਗਾ ਉਹ 3 ਆਊਗਾ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ 4 ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ 25 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 4 ਬਚ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 16 16 256, ਯਾਨੀ 6 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ 6 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਹਰ 1 6 ਗੁਣਾ 4 ਹੈ, 6 ਗੁਣਾ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ 24, ਤਾਂ 24 ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 101 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 1 ਆਊਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 101 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 2 ਆਊਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 101 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 3 ਆਊਗਾ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 101 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 101 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9 ਆਊਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9 ਆਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9 ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 10000 ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। 10000 ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10000 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 10 10 ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
किवें भला देखो ध्यान देना, जे मैं इत्थे 10,000 मान लिया तो 0 यूनिट डिजिट आऊगा, उहदे नाल मेरा कोई फर्क नहीं पैण वाला, क्योंकि मैनूं पुछिआ गा इन्हां ने कि यूनिट डिजिट इन्हां दा की आऊगा। हुण इन्हां सारिਆਂ ਦਾ सम करना, सम करना किवें करांगे देखो, 1 ਦਾ ਕੀਤਾ, 2 ਦਾ ਕੀਤਾ, 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ n × n + 1/2 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋੜ, यानी 10 × 11/2, यानी 2 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 55, राइट है। यानी कि जोड़ के देख लो, भावें 1 ਤੇ 2 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10 10 ਤੇ 5 15 15 ਤੇ 6 21 21 ਤੇ 7 28 28 ਤੇ 8 36 36 ਤੇ 9 45 45 ਤੇ यानी उस तो बाद आ जाऊगा 10 55, राइट है। यानी पहलियां 10 टर्मां का जोड़ आ जिहड़ा ओह 55 बनदा गा, पहलियां 10 टर्मां का जोड़ आ जिहड़ा ओह 55 बनदा, यानी यूनिट डिजिट मेरे को कितना आ रहा 5 आ रहा, यूनिट डिजिट मेरे को कितनी आ रहा 5 आ रहा। फिर अगलियां टर्मां 10 देखूंगा तो 5 आ गया, फिर अगलियां टर्मां 10 देखूंगा तो 5 आ गया, फिर अगलियां टर्मां 10 देखूंगा तो 5 आ गया, फिर अगलियां टर्मां 10 देखूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। एवें मैं जेकर 10,000 तक जा वड़ा तो यह जोटा जोटा ना हो जाऊगा, यानी जेकर पहलियां 2 टर्मां देखा तो 0 आ गया, फिर अगलियां 2 टर्मां देखा तो 0 आ गया, फिर अगलियां 2 टर्मां देखा तो 0 आ गया। तो 10,000 तक जेकर मैं देखा एवें 10 10 करके देखा तो 5 5 आता, जे मैं 20 भी करके देख ला, 20 भी करके देखा तो की आ जाऊगा 0 आ गया, फिर आ गया 2 0 आ गया, क्योंकि आ 10 टर्मां का 5 है, आ 10 टर्मां का 5 है, तो 20 टर्मां का 0 आ गया, 20 टर्मां का 0 आ गया, 20 टर्मां का 0 आ गया। तो 10,000 आ जिहड़ा वो 20 का मल्टीप्लाई हैगा, यानी 20 नूं जेकर मैं 500 नाल मल्टीप्लाई करदा तो 10,000 हो गया, यानी 500 गुणा मैं जेकर करदा तो 0 गुणा 500 0 ही आऊगा। तो बेसिकली हर बार 0 आ रहा, हर बार 0 आ रहा, हर बार 0 आ रहा, तो इत्थों तक भी 0 ही आऊगा, यानी यूनिट डिजिट मेरा हैगा भाई वो 0 आ गया, यूनिट डिजिट मेरा हैगा भाई वो 0 आ गया। पेशेंस रखना पैना गा, जेकर तुहानूं लगदा कि यह बड़े हाई लैवल कराते, पहला दिन सीगा पता ही नहीं लग्या नंबर सिस्टम की हो गया, तो जरांद रखनी पैनी है। इस तरीके का मैथ करना तो थोड़ा जा साइंटिफिकली तो थोड़ा जिहा लॉजिकली थोनू पढ़ना पैना गा भाई, राइट। ये क्वेश्चन पक्के आ जाते, एंड यही क्वेश्चन वो 4 है जिहड़े मैं वार वार कहना हुन्ना कि पेपर दे विच आ गई, जिहड़ा सही कर गया वो अगे निकल गया, एंड यही क्वेश्चन लाजमी पेपर दे विच सैट हुंदे ने इहो जे। जेकर तुसीं ये क्वेश्चन कर लिया तो इहो जे क्वेश्चन तुसीं बहुत कर सकते हो, राइट हो गया। हुण एक होर वैरायटी दिखाउणा जिहड़ी कि बहुत सिंपल जी वैरायटी आ, वो क्वेश्चन की आ देखो ध्यान दे नाल। जिवें हुण आ क्वेश्चन तुहानूं दिख रहा होगा, कहंदा जी 2 की पावर एक मिनट, कहंदा 2 की पावर 93 नूं जेकर मैं डिवाइड करा 7 ते तो रिमाइंडर की आऊगा। यह क्वेश्चन पक्का आउंदे लाजमी, राइट आ। तो हुण मैं इत्थे देखिया 7, जदों मैं 2 की पावर यार जदों मैं 2 की पावर 3 कीता तो इत्थे 93 ते जाऊगा, तो 3 31 30 93 हुंदा गा, तो 31 रह गया, 30 है ना 31 रह गया, तो डिवाइडेड बाय 7, यानी 2 की पावर 3 की होंदा गा 8, यानी 8 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। हुण 8 की पावर 31 का मतलब की है कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा यह 31 बार है, 31 टाइम्स है। तो जे मैं इनू 7 नाल डिवाइड करदा तो 7 नूं जदों 8 ते डिवाइड किया तो 1 बच गया, फिर 1 बच गया, फिर 1 बच गया, फिर 1 बच गया, यानी 1 की पावर 31 बच जूगा। एंड 1 की पावर जिन्नी मर्जी हो जाए वह हमेशा 1 ही दिखाऊगा, यानी 1 ही बचूगा। तो फिर यदा मतलब रिमाइंडर जिहड़ा बचूगा वह 1 ही बचूगा। इस तरीके के क्वेश्चन करने होंगे पेपर दे विच लाजमी आउंदे ने। अगला क्वेश्चन कहता जी 4 की पावर अपने कोले 1000 है, जेकर उन्होंने 7 ते डिवाइड किया तो दसो कितना आऊगा। हुण मैनूं पता कि 7 नाम 63 होंदा ते 4 ते 64 आउंदा, ते मैं 4 की पावर जेकर 3 करा तो इत्थे 333 आ जाऊगा, 333 गुणा 3 999 आ गया, इत्थे आ गया 4, इत्थे आ गया अपने कोले 7, 4 की पावर 64, यानी 64 गुणा 4 जेकर मैं डिवाइड करदा 7 ते, इत्थे पावर हैगी अपने कोले 333। हुण 7 ते जदों मैं 64 नूं डिवाइड किया तो 7 नाम 63, फिर 1 बच गया, तो 1 की पावर जिन्नी मर्जी होवे 1 ही बचूगा, बस अपने कोले 1 4 अड्ड बच गया, यानी 4/7, 7 नूं जदों ओबवियस गल है 4 ते डिवाइड करूँगे तो 4 ही बचेगा, यानी इहदा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन बहुत सौखे आ। 3 की पावर 40 नूं जेकर तुसीं 11 ते डिवाइड करोगे, ध्यान दे नाल देखो बहुत सौखा गा, किवें करोगे 3 की पावर। हुण देखो सीधी जी गल है, जेकर मैं ये देखा कि 3 की पावर जिवें हुण मान लो 11 ते डिवाइड करना गा, राइट। हुण जे मान लो इहनूं मैं लिखा कि 3 की पावर मान लो आपां कहता भाई कि 3 की पावर मान लो 2 है, 3 की पावर 2 जेकर इत्थे आ गया 20 आ गया, डिवाइडेड बाय 11 आ गया, राइट। 3 की पावर 4 करके देख लो, 3 की पावर 4 की होंदा 81 होंदा, राइट है। फिर उस तो बाद यानी कहने का मतलब आपां नूं नेड़े तेड़े जाना पैना गा। जिवें हुण फॉर एग्जाम्पल एक मिनट,
फॉर एग्जाम्पल जिमें आप मान लो ये क्वेश्चन करिए कि 3 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 11 राइट है। हुण जिमें 3 नूं 1 ते डिवाइड करा तो कितना आ जाऊगा, तुहाडा 3 ही आऊगा राइट है। 1 ते यानी कि 3 नूं जाके 11 ते डिवाइड करा तो 3 ही आऊगा। जे मान लो मैं इत्थे 3 की पावर 2 लेना, यानी 3 की पावर 2 हुंदा 9, 9 नूं जेकर मैं 11 ते डिवाइड करा तो 9 ही हुंदा। 3 की पावर 3 करूँगा तो 27 आऊगा, 3 की पावर 3 करूँगा तो 27 आऊगा। 27 नूं जेकर मैं 11 ते डिवाइड करूँगा तो 11 दूना 22 यानी कि 5 आऊगा। यानी कहने का मतलब की है कि जो मैं 3 की पावर 4 किया तो यह पूरा पूरा वंडिया गया तो इत्थे मेरे को कितना आ गया, यानी 81 आ गया। 81 आ गया, यानी कहने का मतलब 81 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 11। जो मैं 81 नूं 11 ते डिवाइड किया, 81 नूं जो मैं 11 ते डिवाइड किया तो इन्हूं मैं लिख सकदा ना उवें उही 81 गुणा 81 गुणा 81 गुणा 81 एवें लिख सकदा। जो मैं 11 ते डिवाइड किया तो 11 नूं करोगे 77 नाल, यानी 11 7 77 तो 4 बचूगा, यानी 4 बचिया, फिर 4 बचिया, फिर 4 बचिया, फिर 4 बचिया एंड किन्ने वारी 4 बचिया, 10 वारी। ये 4 किन्ने वारी बचिया, 10 वारी बचिया। 4 किन्ने वारी बचिया, 10 वारी बचिया, यानी 4 जिहड़ा हैगा वो 10 वारी बचिया। 4 4 4 4 4 10 वारी बचिया। अगेन जो इनू करोगे तुम मान लो आह चौकम चौकी 16 आ गया, आ चौकम चौकी 16, फिर चौकम चौकी 16, फिर चौकम चौकी 16, एवं जोटे जोटे बन जाएंगे। तो चौकम चौकी 16 यानी 11 में जो 16 नाल डिवाइड करोगे तो फिर कितना बचूगा, 5 बचूगा, यानी 5 5 बचता जाऊगा, 5 5 बचता जाऊगा, यानी 5 आ जिहड़ा वो आपां नूं 5 वारी बच जूगा, 5 आ जिहड़ा आपां नूं 5 वारी बच जूगा। मैनूं पता है औखा गा राइट। जो 5 5 25, 5 5 25 फिर इत्थे 5 बच जूगा, यानी कि 11 नूं कीता तो इत्थे 3 बच गया, 11 नूं कीता इत्थे 3 बच गया, फिर इत्थे 5 बच जूगा राइट है। फिर इत्थे करोगे 3 3 9 9 5 45 आ गया। 11 नूं जो इहदे करोगे तो 11 3 33, 11 चौक 44, यानी कहने का मतलब की है कि एक ही आंसर अपने को अगेन आ गया। यानी कहने का मतलब भी आपको तोड़ तोड़ देखना पैना जिन्ने वारी मैं इत्थे तोड़िया गा। आसान भाषा दे विच समझाउणा, देखो यह आ गया भाई अपने को डिवाइडेड बाय अपने को 11 का राइट है, 11 का राइट है। हुण जे मान लो मैं ये कहा कि 243 है, जिमें मान लो 243 81 होंदा, 243 81, यानी कहने का मतलब 3 3 की पावर 5 करोगे है ना, 81 ती आ राइट है। इनू 11 से वंडो तो कितना आ जाऊगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो इत्थे आ गया 11 दूना 22, रिमाइंडर अपने को 1 बच गया। यानी जेकर 3 की पावर 5 करोगे, वो जो मैं करके दिखाया ਉਹਦਾ मतलब सिर्फ यह है भी तुम जिन्नी मर्जी पावर ले लो, जिन्नी मर्जी पावर ले लो, पर जो आप नेड़े तेड़े जा वड़ांगे, जे मैं इत्थे 3 की पावर 5 ले लिया तो 5 8 40 बन गया डिवाइडेड बाय 11, यानी 3 की पावर 5 आ जिहड़ा वो 243 हो गया, 243 की पावर 8 तो डिवाइडेड बाय 11 हो गया राइट है। जो मैं इनू एवें किया तो यह मैं लिख सकता 243 गुणा 243 गुणा 243 गुणा, इस तरीके दे नाल मैं इनू 8 वारी लिख सकता डिवाइडेड बाय 11। जो मैं इनू वंडिया तो 11 दूना 22 तो 11 दूना 22, यानी 1 बच गया, तो 1 1 1 बचता जाऊगा, तो 1 की पावर जिन्नी मर्जी बचे 1 ही अपने को आंसर आ जाएगा। जे मान लो थोड़े 2 की पावर आह 3 की पावर 5 दिमाग के विच पहला नहीं आता, तो 3 की पावर जिमें मैं पहला करके दिखाया 4, तो फिर कितना बच जूगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 11 नूं 81 ना करोगे तो 4 बचूगा, फिर 4 बच गया, फिर 4 बच गया, फिर 4 बच गया, 10 वारी बच गया। फिर चौकम चौकी 16, चौकम चौकी 16, चौकम चौकी 16, फिर 11 ते वंडोगे तो 11 16 ना करोगे तो 5 5 बचूगा। फिर 5 किन्ने वारी बच जूगा, क्योंकि 2 2 के जोटे बन गए, तो फिर 5 5 वारी बचूगा, तो उन्होंने 5 वारी लिख लिया राइट। इस तरीके के नाल, इस तरीके के नाल फिर 5 5 25, 5 5 25 तो आह बच गया, यानी 11 नूं इहदे नाल करोगे तो 3 बच गया, 11 नूं इहदे नाल करोगे तो 3 बच गया, इत्थे 5 ही बच गया, 3 3 9 5 45, तो 45 नूं फिर 11 नाल करोगे तो 11 चौक 44, तो 1 ही बचूगा। यानी कहने का मतलब जे डायरैक्ट दिमाग दे विच ना आवे कि यह नेड़े तेड़े किहदे जा रहा है, जिवें इत्थे 3 की पावर 5 243 आ, ये तो चलो डायरैक्ट 243 रिमाइंडर 1 छड्डदा गा। जे दिमाग दे विच ना आवे तो 3 की पावर 4 भी करके देख सकते हो, 3 की पावर 2 भी करके देख सकते हो, जिवें मर्जी तुसीं कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन करने बनते नहीं राइट। हो गया, मैनूं पता फिर वही गल है कि भाई आई एम सो सॉरी जिहड़े मैथ नूं पहली बार देखण आए आ तो उन्होंने लगता सीगा कि मैथ बड़ा सौखा, तो जिवें सर जीके कराउंदे उवें यह हो जाना। आई एम सो सॉरी, मैं तुहानूं गलत राह नहीं पाउणा चाहुंदा, पर इत्थे उवें समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि हर पौड़ी चढ़नी पैंदी आ एक क्वेश्चन समझण वास्ते, एक टाइप समझण वास्ते। वो पौड़ी फिर ओबवियस गल है, जेकर तुसीं मैथ के कोर्स विच जाओगे उत्थे ही पढ़िया जा सकता। जीके तो तुसीं चलो फिर भी एक बारी समझ सकते हो। इत्थे जिवें मान लो 2 की पावर 23 आ डिवाइडेड बाय 10 है। हुण ओबवियस गल है,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ नहीं रहा, तो मैं की करूँगा 2 ਨੂੰ जेकर मैं कॉमन कढ़ ਲਾਂ तो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 बच गया। ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ डिवाइड करा 10 ਤੇ ਤਾਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ 2 5 10। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ। ਜਦੋਂ मैं 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ मैं 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਬਚ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ 5। ਆਹ 2 ਤੇ 10 ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 ਤੇ ਵਟਾ 5 ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ 2 ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਿਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 22 ਬਚ ਗਿਆ, 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ, 5 ਰਹਿ ਗਿਆ। कारण की है कि 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਬਚੂਗਾ, यानी 4 बचिया, फिर 4 बचिया, फिर 4 बचिया ਤੇ 11 ਵਾਰੀ 4 बच गया, राइट है। 11 ਵਾਰੀ 4 बच गया, यानी कहने का मतलब की आ कि जो मैं एवें किया तो हमेशा एवें ही बचता रहूगा, यानी 4 4 बचता रहूगा, राइट है। 4 4 बचता रहूगा तो हमेशा जो 4 बचूगा तो 4 ही बच गया, राइट। देखो ध्यान दे नाल किवें, हुण जो मैं चौकम चौकी 16 किया 11 वारी है, चौकम चौकी 16, चौकम चौकी 16, चौकम चौकी 16 तो 5 3 15, हमेशा एक एक बचूगा, एक एक बचिया। तो जो जोटे जोटे बना ले, ये 11 तक टर्म तो 10 तक तो जोटे जोटे बन गए, एक एक बन गया। 11वां कला 4 फिर रह जाऊगा, यानी कहने का मतलब 4 ही अपने को रिमाइंडर बच रहा। जो हुण आपां यानी इहनूं डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचूगा, तो बट 4 आंसर नहीं लाउणा इहदा, क्यों? क्योंकि आपां शुरू दे विच 2 नूं वंडता सी, 2 गुणा 5 10 करता सी, आपां तां 10 ते डिवाइड करनी है, आ तां 5 ते आ। जदों मैं गुणा 2 नाल करूँगा तो फिर मैनूं इत्थे भी गुणा 2 नाल करनी पैनी आ, तो फिर रिमाइंडर भी गुणा 2 नाल हो जाऊगा, यानी 4 गुणा 2 मेरा 8 आ गया। 4 गुणा 2 इज द राइट आंसर, 8 इहदा राइट आंसर बन गया है। समझ लग गई? अगला क्वेश्चन, 7 की पावर कहता 84 है जी, डिवाइडेड करो उन्होंने कहता 342 ते। हुण 343 ते जांदा, मैनूं पता 7 की पावर 3 343 हुंदा, 3 ते आह वंडिया जाऊगा, 3 दूनी 6 ते 3 8 24, 28 ते 84 हुंदा, इहनूं डिवाइड कर लो 342 ते, यानी 343 की पावर 28 ते बटा आ गया 342। आ तां सीधा हो गया, 342 नूं 343 नाल करोगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा यानी 28 बार आ गया, यानी इहनूं जिवें मर्जी कर लो, 1 की पावर 1 ही रहूगी, तो 1 इहदा राइट आंसर बन गया है। समझ में बात आई रे। इस तो बाद आ गया हुण 5 की पावर 48, 5 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 124, हुणे 125 तक जाता है। 5 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाऊगा, 5 की पावर 3 3 1 3 3 6 18, डिवाइड कर लो भाई 124 ते, यानी 5 की पावर 3 125 होंदा, 125 नूं 16 बार लिख लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। इत्थे 124 आ, 124 ने 125 ते वंडोगे तो 1 ही रिमाइंडर छड्डूगा, 24 बार छड्डे कोई चक्कर वाली गल नहीं, 1 तां 1 ही रहेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 65 ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 28 ਆ, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27 ਹੁੰਦਾਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27 ਹੈ, ਤਾਂ 3 दूणी 6, 3 दूणी 6 ਤੇ 3 1 3, 21 30 63 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਚ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਚ ਗਿਆ, 21 30 63 ਤੇ 2 बच गया अपने को। डिवाइड किहदे नाल करना, 28 नाल करना, ठीक है। हुण 3 की पावर 3 की हुंदा, 27 हुंदा, 27 गुणा 27 गुणा 27 किन्ने बारी 21 बार, 21 बार लिखना, ठीक है। गुणा अपने को अड तो 9 पियागा, आह अड लिख लो। तो जो मैं 28 ते 27 नूं वंडिया तो ऑब्वियस गल आ, आह छोटी रकम आ, वड्डी ते वंडांगे तो 27 ही आंसर आऊगा, 27 ही आंसर आ गया, राइट आ। हुण 27 27 27 27 करके यानी जिहड़ा हैगा ओह बेसिकली बचूगा। 27 गुणा 9 करके देख लो, फिर 27 गुणा 9 करके देख लो, फिर 28 ते वंड लो, उस तरीके का रिमाइंडर तुहाडे सामने आ जाएगा, राइट है। यानी 9 7 63 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, 9 7 63, 9 दूनी 18 ते 6 24 आ गया, 9 7 सॉरी 9 7 63 आ गया, 9 दूनी 18 ते 6 24 आ गया, 28 आ गया, राइट। हुण इहनूं वंड लो भाई, उस तरीके का तुहाडे सामने आंसर आ जाऊगा। दिमाग थोड़ा जिहा थक गया, इस तरीके का तुसीं क्वेश्चन कर सकते, यानी कहने का मतलब इन्हां क्वेश्चनों दे विच कोई भी दम नहीं हैगा। नंबर सिस्टम मैं दोबारा फिर किसी ना किसी चैप्टर दे विच करा दूंगा, ये सारे क्वेश्चन मेरे करा रखे ने। अगला क्वेश्चन जिवें आ गया, मान लो 4 की पावर 109, चलो ऐ करो थोड़ा जिहा मैनूं आया भी मैं इस तो बाद होर क्लास भी बनाउणी आ, इन्हां दोनों का आंसर दसो। एक इहदा आंसर निकलने उवें ही आ, निकलणगे उवें। एक इहदा आंसर कमेंट बॉक्स दे विच दसो, 3 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 28। एक इहदा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन यानी कि आंसर यानी कि तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दसो, ठीक है। फिर आपां करदे आ, क्योंकि घंटे का लैक्चर हो गया, इस तो बाद मैं होर भी तैयार करनागा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर,
ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।